Dear students, today we are going to discuss the correct use of verb. That is very important with respect to your use of correction. We should say that correction of errors. A passage is given in your examination, in your annual examination, for 6 marks, and more than this, even it's important for writing correct English sentences in a formal way. So we are going to discuss that correct use of verb. The very first point is that generally past tense in reporting speech is followed by past tense in reporter speech. When we say about reporting speech and reporter speech, what is that? Reporting speech is a part that is before the inverted commas if the sentence is in the form of direct speech. And when it is going to be converted into indirect speech, then the part that is before that saying of somebody, that is called reporting speech. And when we talk about the reported speech is exactly the point, the talk that is said by some person and that is conveyed through another person, right? That is called reported speech. So when we talk about the tenses in reporting speech and reported speech, we should keep in mind, in general, whenever there is past tense in reporting speech, it must be followed by a past tense in the reported speech. In general, that is the rule. He told me that he was accompanying his brother, right? अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से करें, देखें रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ही टोल्ड मी दैट इज अ पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. अब दैट के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, ही वॉज अकम्पनिंग हिज ब्रदर, ये इसका रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है. तो दोनों में पास्ट टेंस होना चाहिए. हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बोल्ड कर दिया है कि दोनों टैली होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के साथ मैच होने चाहिए. If somebody writes, he told me that he is accompanying his brother, that is considered wrong. He told me that he was accompanying his brother. That would be the right tense. ठीक है. अगर is हम यहाँ पे लगाएंगे तो that will be wrong. Next part इसी तरह से, the teacher asked the students why they were making a noise. Why they were making a noise, right? अगर हम इसमें the teacher asked the students why they are making a noise अगर करेंगे तो that would be wrong. So in all the conditions, in general, uh, past tense is followed by a past tense. In reporting speech and reported speech, both should be there, a past tense. But in some cases, there might be past tense might be followed by present tense in some specific condition. We are going to discuss that in the next point. In the same way, if a reporting speech or a clause in a past is followed by a universal truth or a proverb, there will be no change in the tense of reported speech, proverb or universal truth. यानी ऐसे पॉइंट्स होते हैं कुछ जिनको हम ये कहते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, जो हमेशा सच रहते हैं, जो कि हमेशा उनकी यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पर प्रेजेंट होते हैं, या प्रोवर्ब्स होती हैं, तो उसमें फिर हम पास्ट टेंस को प्रेजेंट टेंस से फॉलो भी कर सकते हैं, राइट? आई डिड नॉट नो द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. अब ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एक प्रोवर्ब है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगी, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पर भी इसको कंसिडर किया जा सकता है. या जैसे हम कहते हैं अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि फॉलोइंग पार्ट में प्रेजेंट टेंस होता है, बट द प्रीसीडिंग पार्ट यानी रिपोर्टिंग स्पीच है, उसमें पास्ट टेंस भी हो सकता है. एस्ट्रोलॉजिस्ट फाउंड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो इसमें फाउंड है, लेकिन फाउंड के साथ आगे हमने प्रेजेंट टेंस भी लगाया हुआ है, तो इस सूरत में ये पॉसिबिलिटी होती है. तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस इन अ कंडीशनल्स एज फॉलोइंग. अब सीक्वेंस जो है वो किस तरह से हो सकती है, यानी कंडीशनल से मुराद है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम इफ़ से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें ओपन कंडीशन है, इफ़ आई फाइंड द बुक आई शैल गिव यू. यानी एक पैटर्न या एक कंडीशन ये हो सकती है कि फर्स्ट पार्ट में इफ़ वाले क्लास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ फिर हमने अटैच की है विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इम्प्रोबेबल और इमेजिनरी कंडीशन हो सकती हैं, जैसे इफ़ वी सेट ऑफ नो वी कुड रीच देयर इन टाइम. अब इसमें यानी इफ़ वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म है, तो उसके साथ साथ सेट की क्योंकि सेम फॉर्म्स होती हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की. या ये इस तरह से भी हो सकता है, इफ़ आई वर अ मिलियनेयर आई वुड हेल्प द पुअर.
तो वुड भी विल की सेकंड फॉर्म है, इसी तरह से कुड भी कैन की सेकंड फॉर्म है। अनफुलफिल कंडीशन यानी ऐसी कंडीशन जो कि पूरी नहीं होती या जिसके लिए हम ख्वाहिश करते हैं कि ऐसा होता, तो उसमें हम फिर ये कर सकते हैं, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन। अब इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है और फिर आगे हमने क्या लगाया, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गॉट या गॉटन दोनों सेकंड और थर्ड फॉर्म के तौर पर यूज़ होती हैं। अमेरिकन गॉट यूज़ करते हैं जबकि गॉर्डन भी यूज़ होती है, राइट। तो इसलिए ये गॉट जो है यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही कंसिडर की जाए। If clause is followed by a spontaneous response, a result of the clause, both the clauses will take first form of verb. हाँ, अब इसके साथ एक कंडीशनल फॉर्म में थर्ड फॉर्म भी है जिसमें हम दोनों पार्ट्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वो तब हम यूज़ करते हैं जब हम ये देखें कि एक यानी इफ़ वाला क्लास जो है वो एक्शन है, दूसरा उसका रिएक्शन बन रहा है, या इफ़ वाला क्लास एक ऐसा पार्ट है जिसके इमीडिएट रिएक्शन के तौर पर नेक्स्ट पार्ट सामने आ रहा है, जिसमें दरमियान में कोई इमीडिएट गैप दरमियान में मौजूद नहीं है, रादर दे आर बोथ इमीडिएट एंड ऑटोनोमस या स्पॉन्टेनियस हैं, एक दूसरे के ऑटोमेटिक जो है वो पार्ट प्ले हो रहे हैं। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, दोनों में फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं। यानी ये आमतौर पर वी शुड से दैट दे माइट बी सम केमिकल एक्शन एंड रिएक्शंस, या इसमें साइंटिफिक वी शुड से दैट रिएक्शन एंड एक्शन कैन बी इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू नीड फ्लोर इट टर्न्स इनटू डो। अब ये फ्लोर से मुराद यहाँ पर आटा है, यानी आटा अगर आप गूंथते हैं तो वो डो यानी उसकी एक और फॉर्म चेंज हो जाती है, इट इज़ इमीडिएट रिएक्शन। इफ़ ही हीट्स वाटर इट इवेपोरेट्स, यानी वो अगर पानी को हीट करता है तो इवेपोरेट हो जाएगा, ये भी एक इमीडिएट एक्शन और रिएक्शन है, यानी दरमियान में कोई गैप नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पहले पानी को हीट करें उसके बाद फिर वेट करते रहें कि ये इवेपोरेट होगा, जैसे ही आप हीट करेंगे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंचेगा, फौरन इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, some verbs are followed by a certain preposition even if they are transitive. For example, to operate upon, to search for, यानी कुछ verbs ऐसे होते हैं जो अगरचे transitive भी हों या जैसे भी हों उनके साथ आगे preposition ज़रूर लगती है, राइट। जैसे he has been operated upon, ठीक है, ऑपरेट के साथ अपॉन ज़रूर लगाएंगे, ठीक है, इवन इफ़ दे आर इंट्रांजिटिव भी हैं, ट्रांजिटिव भी हैं, जैसे भी हैं, यानी उनके साथ हम ये प्रपोजिशन मस्ट लगती है। द पुलिस सर्च फॉर द सस्पेक्ट, सर्च के साथ फॉर ज़रूर लगेगा, ठीक है। सर्च फॉर का मतलब होता है तलाश करना। सम वर्ब्स डू नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इजंट अवेलेबल। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कि कुछ वर्ब्स में वी नीड सम वी शुड से दैट सम ऑब्जेक्ट, यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे हैं जिनमें या इवन ट्रांजिटिव ना भी हों उनको हम इंट्रांजिटिव के तौर पर भी यूज़ करते हैं, बट स्टिल इंट्रांजिटिव के तौर पर उनको यूज़ नहीं कर सकते, हमें उनके साथ डेफिनेटली आगे ऑब्जेक्ट लगाना होता है, एंड दे मस्ट नीड एन ऑब्जेक्ट इन द एंड, यानी उनके साथ ऑब्जेक्ट का लगाना कंपलसरी, अगर नहीं लगाएंगे तो वो फॉर्मल राइटिंग में इंग्लिश में मिस्टेक कंसिडर की जाती है। और अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद से बनाकर उसको एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं, यानी उसको एज एन ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं, दैट कैन बी यूज, जैसे टू रिजाइन, टू डिस्टिंग्विश, टू सेट, टू रिवेंज, टू एंजॉय, टू एब्सेंट, टू हर्ट, टू बी अशेम्ड ऑफ, टू अवेल, etc. There are some others too, but these are the most common that they are used. For example, if somebody is saying that she absented या he absented अगर वो यूज़ कर रहा है तो उसके साथ डेफिनेटली एब्सेंट को हम नॉर्मली एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, या तो यहाँ पे अगर हम यूज़ करेंगे एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, शी एब्सेंटेड फ्रॉम द ऑफिस अगर लगाएंगे तो दैट विल बी रॉन्ग। एब्सेंटेड के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो हम उसका रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट खुद से बना लेंगे, क्रिएट करेंगे, यानी शी एब्सेंटेड है तो उसके साथ हर सेल्फ शी के हिसाब से, अगर ही एब्सेंटेड है तो हिम सेल्फ आ जाएगा, अगर वी है तो आवर सेल्फ आ जाएगा। The player hurt himself while fielding the ball. The player hurt के बाद भी इसी तरह से डेफिनेटली, यानी किसको हर्ट किया आगे ऑब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है तो डेफिनेटली दैट विल बी रॉन्ग एंड वी हैव टू पुट द प्लेयर हर्ट हिमसेल्फ, द प्लेयर हर्ट हर सेल्फ भी हो सकता है अगर फीमेल प्लेयर है ऑफकोर्स, तो इसके साथ भी ऑब्जेक्ट का आना लाजमी है। इसी तरह से ही अवेल्ड ऑफ लीव एट वंस, अब अवेल ऑफ लीव करेंगे तो दैट विल बी फॉर्मली रॉन्ग, यानी अगर सेंटेंसेस में कहीं पर आपके पास लिखा हुआ आ गया तो डेफिनेटली यू हैव टू मेक इट क्लियर दैट यू हैव टू पुट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी लगा हुआ है तो फिर तो ठीक है,
अगर नहीं लगा हुआ तो डेफिनेटली आपने उसमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट अपने पास से खुद से लगाना है। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ लीव एट वंस, तो फिर आप इस तरह से लगाएंगे। इसी तरह से एंजॉय का खास तौर पर आपने ख्याल रखना है, द वर्ब एंजॉय दैट इज मेंशन्ड हियर इन द हियर वेयर आई एम पुटिंग द माउस। एंजॉय के साथ मोस्टली लोग इसको इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर यूज करते हैं, दैट इज रॉन्ग। अगर हम ये कहेंगे वी एंजॉय तो दैट इज रॉन्ग। यानी फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में आप मोस्टली स्टूडेंट यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बट फॉर्मल राइटिंग में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने लिखा है एंजॉय, तो एंजॉय के साथ कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वी एंजॉयड व्हाट, वी एंजॉयड द पार्टी, वी एंजॉयड आवर ट्रैवलिंग, वी एंजॉयड हिज कंपनी, राइट, लाइक दिस थिंग वी शुड हैव। अगर हमने सिर्फ खाली वी एंजॉय लिखा है तो उसके बाद फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज एन ऑब्जेक्ट जरूर यूज करेंगे, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। वी एंजॉयड आवर सेल्फ, अगर वी है तो ही है, तो फिर ही एंजॉयड हिमसेल्फ। अगर शी है तो शी एंजॉयड हर सेल्फ। यानी ऑब्जेक्ट या तो होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट कोई नहीं है तो उसको करेक्ट करने के लिए आप उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो उसके साथ लगा के उसको यूज करेंगे। उसके बाद है कुछ फॉलोइंग वर्ब्स आर फॉलोड बाय जेरेंट्स। यानी ये भी एक ग्रामरियंस ने एक रूल बनाया हुआ है, ग्रामरियंस की तरफ से ये डिसाइडेड है कि कुछ वर्ब्स जो होते हैं स्पेशली जो आपके एक्शन से रिलेटेड या सेंसेस से रिलेटेड हैं, जो यानी आपके करने के, काम करने के से रिलेटेड होते हैं, आपकी सेंसेस से या इस तरह के एक्शंस वाले रिलेटेड होते हैं जो मेन एक्शन से रिलेटेड है, नॉट बाय इन्फिनेटिव्स, उनके आगे हमने आईएनजी फॉर्म यानी जेरेंट पुट करना होता है एज ए नाउन, और हम उनके साथ आगे इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते। ग्रामेटिकली दैट विल बी रॉन्ग। वंस अगेन आई वुड से दैट normally we can use in informal English, but if we are talking about formal English, if we are talking about academic English that is important, that is we are going to discuss for examination point of view, then they would be wrong. Yani stop, avoid, start, delay, keep, enjoy, regret, miss, postpone, suggest, cannot help, यानी ये ऐसे वर्ब हैं जब भी आप लगाएंगे तो इनके आगे आपने क्या करना है, जेरेंट फॉर्म पुट करनी है। अगरचे यानी अगर आप इसके साथ साथ आप ये भी जहन में रखें कि ये तमाम जो हम करेक्शंस डिस्कस करते हैं ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर गोइंग टू यूज देम इन योर साइंस सब्जेक्ट्स, डेफिनेटली देयर सच मिस्टेक्स, सच एरर्स आर टू बी इग्नोर्ड। वहाँ पे ये इग्नोर की जाती हैं, इनके मार्क्स भी नहीं करते, लेकिन आप इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश के पेपर में, लैंग्वेज के पेपर में अगर इस तरह की एरर्स करेंगे, ऑफ कोर्स वहाँ पे ये एरर्स काउंट होंगी और आपके मार्क्स कटेंगे, मार्क्स कम होंगे। सो व्हेन यू आर गोइंग टू राइट इन इंग्लिश पेपर, यू मस्ट बी राइट इन करेक्ट वे, यू मस्ट राइट विदाउट एनी एरर। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एरर्स डिस्कस कर रहे हैं। साइंटिफिक नॉलेज में या साइंस के सब्जेक्ट्स में इवन ये कैन इग्नोर की जा सकती हैं, इनके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, इनको इग्नोर किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है। लेकिन जब आप इंग्लिश के पेपर में ये डिस्कस कर रहे होंगे, ये लिख रहे होंगे इस तरह के एरर्स, तो वो डेफिनेटली एक हार्ड यानी एक एरर्स के तौर पर काउंट होंगे। ही वाज टोल्ड टू स्टार्ट टू वर्क, अगर आप लिखेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग। स्टार्ट के बाद आपने हमेशा क्या करना है, वर्किंग आईएनजी फॉर्म लगानी है, अवॉइड के साथ भी, एंजॉय के साथ भी, सजेस्ट के साथ भी, और इस तरह से कैन नॉट हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन नॉट हेल्प के साथ आप 100% इन ईच एंड एवरी वे, ये आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये कॉमनली एक एरर है जो कि कमिट की जाती है, और इसमें सेंटेंसेस इस तरह के आ सकते हैं आपके पैराग्राफ्स में। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, फ्रेज टाइप थिंग्स हैं जिनके साथ हमने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। मीन उनके साथ आगे टू या कोई इस तरह के वर्ड नहीं लगा सकते, इन्फिनेटिव टू वाले नहीं लगा सकते, मीन के हम बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे। एक बात आपने ये फॉलो करनी है, आपने ये पॉइंट माइंड में रखना है कि ये जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ जो भी वर्ब की फॉर्म लगती है, यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, और टू, या इस तरह के वी शुड से दैट, मस्ट, और इस तरह के जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है वो हमेशा बेयर इन्फिनेटिव के तौर पर हम उनको कंसीडर करते हैं, राइट। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है ऐसे वर्ब के फॉर्म्स जिनमें हम टू के बगैर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। दो अपेरेंटली हमें यहाँ पे नजर आ रहा होता है कि हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी चाहिए, बट दैट इज नॉट यूज। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ फ्रेजेस हैं, ये भी एक तरह से मॉडल के तौर पर यूज होते हैं। हैड बेटर, वुड रादर, सूनर देन, रादर देन, एंड डिड नथिंग बट आर फॉलोड बाय बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है।
तो इसमें ये हैड बेटर और वुड रादर जो है, और ये यूज़ होते हैं मॉडल्स के तौर पर, रादर दैन भी और सुनर दैन भी, ये भी एक मॉडल एक्सप्रेशन के तौर पर यूज़ होता है। लेकिन डिड नथिंग ये सेपरेट उससे, आर फॉलोड बाय बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव विद इन ब्रैकेट हमने मेंशन किया हुआ है दैट इट मींस इन्फिनेटिव विदाउट टू। You had better later sorry that is alter, you had better alter your plan। अब alter से मुराद है यहाँ पर चेंज करना। you had better, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे you had better के बाद to लगा देते हैं, you had better to alter your plan, that is wrong। to नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो that will be infinitive मिस error, यानी उसकी error कंसिडर की जाएगी। she would rather die, she would rather to die, इसी तरह से to भी नहीं लगाएंगे। और then to give, हाँ यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं कि then के बाद to लगा देते हैं, then to give a speech, then to give नहीं होगा, that is we should say that a serious error that is being committed by some students। तो then give लगाएंगे, to नहीं लगाएंगे। they would sooner buy a house than to live, to नहीं लगाएंगे, of course that will be then live at home with their parents। I would sooner quit than, हाँ ये एक बहुत कॉमन सेंटेंस है जो कि नॉर्मली इसमें पैराग्राफ्स में यूज होता है, इसको भी आपने अवॉइड करना है। आई वुड सूनर क्विट देन टू डू इट लगाएंगे तो दैट विल बी रॉन्ग। अब इसी तरह से द वर्ड टू इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड विद इन्फिनेटिव्स बट इट इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट और साइन ऑफ इट। यानी हम नॉर्मली ये सपोज करते हैं कि इन्फिनेटिव जितने भी वर्ड्स होंगे उन सब के साथ हमने क्या करना है, टू लगाना है, बट इट इज़ नॉट अ रूटीन मैटर, इट इज़ नॉट वी शुड से दैट अ फाइनल और एब्सोल्यूट रूल। बहुत सारे इन्फिनेटिव्स ऐसे होते हैं जिनमें हम टू नहीं लगाते, यानी वो इन्फिनेटिव वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। और नॉर्मली या जनरली कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम टू वाले इन्फिनेटिव नहीं लगाते, यानी टू के बगैर इन्फिनेटिव आती है। जैसे अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, वी लेट हिम गो। अब लेट ऑफ कोर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी हो सकती है क्योंकि लेट की सेम फॉर्म्स होती हैं। बट हिम गो, अब गो जो है यहाँ पे ऑफ कोर्स इन्फिनेटिव है, राइट। तो आपने यानी आपके उसमें एग्जाम्स में ये फिल इन द ब्लैंक्स के उसके अंदर या एमसीक्यूज के फॉर्म में भी आ सकता है। सपोज दे पुट सेंटेंस, दे राइट द सेंटेंस वी लेट हिम गो, और गो को वो अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन करके आपसे पूछते हैं द अंडरलाइन वर्ब या वर्ड इज, आगे वो आपसे पूछते हैं ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इन्फिनेटिव और इस तरह के ऑप्शन दे देते हैं, तो यू कैन गेट कंफ्यूज देयर। तो यहाँ पे आपने माइंड में रखना है कि जो फॉर्म्स हैं कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स हैं जैसे लेट, मेक, बिड, डेयर, इनके साथ आप जो है हमेशा जब भी वर्ब की फॉर्म लगाएंगे तो वो बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे, मीन के इनके साथ टू नहीं लगाएंगे, आगे जो इन्फिनेटिव होगा लेकिन टू के बगैर होगा। उसमें एग्जांपल्स हमने देख ली। वर्ब्स यानी आफ्टर सर्टेन वर्ब्स जैसे बिड, लेट, मेक, सी, हियर, नीड, डेयर, इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी इनके साथ इन्फिनेटिव जब यूज करेंगे तो विदाउट टू यूज करेंगे। अगर किसी ने लिख दिया वी लेट हिम टू गो, दैट विल बी रॉन्ग। अगर किसी ने लिख दिया शी मेड हर वीप, शी मेड हर टू वीप कर दिया तो दैट विल बी रॉन्ग। दे बेड अस गो, और अगर किसी ने ये कर दिया दे बेड अस टू गो, दैट विल बी रॉन्ग। ये बिड की सेकंड फॉर्म है बेड, ऑफ कोर्स, तो हम इसमें भी इसी तरह से करेंगे। यू डेयर नॉट वर्क, नेक्स्ट पार्ट है यू डेयर नॉट वर्क, तो यहाँ पे भी इसी तरह से यू डेयर नॉट टू वर्क अगर लगाएंगे तो दैट विल बी रॉन्ग। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि डेयर एंड दूसरा जो इसके साथ है नीड, समटाइम ये मेन वर्ब के तौर पर यूज होते हैं, समटाइम इनको एक मॉडल्स के तौर पर यूज करते हैं, तो इनके बाद जो वर्ब आएगा वो इन्फिनेटिव होगा जब हम इनको मॉडल के तौर पर यूज कर रहे हैं। जब हम इनको मेन वर्ब्स के तौर पर यूज करें तो फिर इनके बाद जो वर्ब आएगा वो टू के साथ आ सकता है, दोनों फॉर्म में आ सकता है। डेयर एंड नीड व्हेन कंजुगेटेड विद डू आर यूज्ड एज मेन वर्ब, यानी जब इनको मेन वर्ब के तौर पर यूज करेंगे तो फिर उनके साथ जो इन्फिनेटिव होगा टू के साथ आएगा। डोंट टेक डेयर इन्फिनेटिव, यानी वो बगैर टू वाला इन्फिनेटिव नहीं लेते। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं हमने, आई डिड नॉट डेयर टू आस्क। अब जब डिड नॉट हमने लगा दिया तो ये अंडरस्टूड है कि डेयर हम यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर यूज कर रहे हैं, तो जब इनके आगे हम इन्फिनेटिव यूज करना चाहेंगे तो वो इन्फिनेटिव जो होगा वो कौन सा होगा, टू के साथ वाला होगा, यानी डेयर इन्फिनेटिव नहीं होगा। इसी तरह से वी डोंट, आई नीडेड टू गेट सम हेल्प या आई नीडेड टू गेट सम स्लीप, तो अब यहाँ पे नीडेड भी अंडरस्टूड है, नीड की हमने सेकंड फॉर्म बनाई है, ऑफ कोर्स ये मेन वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। जब मेन वर्ब के तौर पर ये यूज होंगे तो इनके साथ आगे जो इन्फिनेटिव लगाएंगे टू वाले लगाएंगे। अब अगर हम इनको सपोज हम यूज कर रहे हैं
उसके तौर पर सपोज वी आर यूजिंग देम एज अ मॉडल, मॉडल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। जैसे आई डेयर नॉट गो, आई डेयर नॉट गो, अगर इस तरह का सेंटेंस मैं बनाता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं डेयर को एग्जैक्टली उस पैटर्न पे यूज़ कर रहा हूँ जैसे मैंने विल और शैल को यूज़ किया। जैसे मैं कहता हूँ आई शैल नॉट गो, एग्जैक्टली इसी पैटर्न के ऊपर, यानी यहाँ पे मॉडल है। यहाँ जैसे मैं कहता हूँ आई कैन गो, आई कैन गो, आई कैन भी क्या है यहाँ पर, मॉडल है, ठीक है। तो आई कैन, कैन मॉडल के तौर पर यूज हुए। इसी तरह से आई डेयर गो, ठीक है, आई डेयर गो का मतलब है यहाँ पर ये मॉडल के तौर पर यूज हुआ। जब डेयर को एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे, सो पॉइंट इज दैट जब हम डेयर को एज अ मॉडल यूज करेंगे तो उसके साथ जो इन्फिनेटिव आएगा वो बेयर इन्फिनेटिव होगा, यानी टू के बगैर वाला इन्फिनेटिव। लेकिन जब हम डेयर और नीड को एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो फिर इनके साथ जो इन्फिनेटिव हम लगाएंगे वो टू के साथ वाला इन्फिनेटिव आ सकता है। सो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, कुछ फ्रेजेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जैसे नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, हेल्पिंग वर्ब इज पुट बिफोर द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये होता है कि इसमें सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। मीन कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है इज पुट बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है अगर ये क्वेश्चन फॉर्म नहीं होते। नॉर्मली हम ये सपोज करते हैं कि सब्जेक्ट से पहले अगर हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो इंटरोगेटिव या इंटरोगेशन बन जाती है या इंक्वायरिंग एक तरह से क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, और इनके साथ हम जब भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो वो सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और उसका मतलब ये होगा कि ये क्वेश्चन नहीं बना, बट इट इज़ अ नॉर्मल सेंटेंस, इट इज़ एन अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस का पैटर्न इस तरह का है, उसके साथ हम इसी तरह से लगाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए, नो सूनर डिड ही लीव देन द स्टॉर्म ब्रोक। अब यहाँ पे इसका मतलब ये बनता है कि जो ही उसने छोड़ा, जो ही वो घर से निकला या जो ही वो रवाना हुआ, तूफान चल पड़ा, राइट, या तूफान स्टार्ट हो गया, तूफान शुरू हो गया। तो जो ही इस सेंस में जब हम यूज़ करते हैं, उर्दू ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। नो सूनर डिड ही लीव देन, अब इसमें देखें डिड लगाया हमने, नो सूनर के बाद डिड लगाया, बट इट इज़ नॉट एन, वी शुड से दैट क्वेश्चन फॉर्म, इट इज़ नॉट अ सेंटेंस दैट इज आस्किंग अ क्वेश्चन, रादर इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग है। इसी तरह से हार्डली हैड आई ईटन, अब इसमें भी देखें हैड हमने स्टार्टिंग में लगा दिया, राइट। तो जब हैड हम स्टार्ट में लगा रहे हैं तो इट डजंट मीन दैट इट इज अ क्वेश्चन, इट इज जस्ट अ सिंपल अफर्मेटिव, वी शुड से दैट पार्ट, एंड वी शुड नॉट बी कंफ्यूज विद मेकिंग इट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इसको नहीं बनाना हमने, उसके साथ मिक्स नहीं करना। इसी तरह से फिर हम नेक्स्ट आते हैं, एक और इसी तरह का सेंटेंस है, हार्डली हैड आई ईटन टू मॉर्सल्स ऑफ लोफ, यानी रोटी के मैंने दो ही लुकमे खाए थे, व्हेन माय फ्रेंड केम टू सी मी, तो मेरा दोस्त मुझे देखने आ गया या मिलने आ गया। स्कार्सली हैड ही गॉन विद व्हेन पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर, स्कार्सली हैड ही गॉन, मुश्किल अभी वो गया ही था कि पुलिस ने यानी उसके दरवाजे पे नॉक किया। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस भी हमने माइंड में रखने हैं कि ये किस तरह से आते हैं, यानी ये सेंटेंस जो है डेफिनेटली वो एक तरह से क्वेश्चन पार्ट नहीं बनेगा।